46वें राष्ट्रपति और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ लेने के लिए पहुंच गए हैं, उनसे ठीक पहले कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद का जो कार्यक्रम है, उसका शपथ का जो कार्यक्रम है, वो इस वक्त लाइव कैपिटल हिल जो अमेरिकी संसद है वहां। Ladies and gentlemen, here for the singing of our national anthem, accompanied by the President's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga. के राष्ट्रगान को अमेरिका के राष्ट्रगान के लिए लेडी गागा पहुंच गई हैं। Stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red और कुछ ही देर में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रगान का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और खास बात यह है कि
अमेरिका की नई सरकार में भारतीयों को भी, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा तरजीह दी जा रही है। कम से कम 20 भारतीय मूल के लोग अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन में बड़ी भूमिकाओं में होंगे। Fire Captain Andrea M. Hall for the reciting of the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What you are all about to be part of, America, is a historic moment of firsts. To administer the oath to our first African American, our first Asian American, and our first woman vice president, Kamala Harris, it is my great privilege to welcome to the inaugural stage the first Latina to ever serve on the Supreme Court of the United States of America, Justice Sonia Sotomayor. Ladies and gentlemen, please remain standing for the oath of office, followed by musical honors. Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely, that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, without any mental reservation or purpose of evasion, that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. the duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं और इसी के साथ वो पहली अफ्रीकन एशियन मूल की उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति हैं, पहले ब्लैक उपराष्ट्रपति हैं। तो कई फर्स्ट उनके नाम के साथ हैं। इस तरह से अमेरिका के इतिहास में वो एक खास मुकाम पर हैं और ये चीज़ अमेरिका के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। पहली बार अमेरिका का इतिहास इस तरह के दृश्य को देख रहा है। पहली बार एक अफ्रीकन एशियन वहां उपराष्ट्रपति बनी। Ladies and gentlemen, please be seated. और अब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण की बारी है। जो बाइडेन शपथ लेने के लिए And Mr. President-elect, this is the first inauguration in the history of America where J-Lo was the warm-up act for Chief Justice Roberts. With that, it is now my distinct honor to introduce the Chief Justice of the Supreme Court of the United States, John Roberts, to administer the presidential oath to the next President of the United States, Joseph R. Biden. Ladies and gentlemen, please stand for the oath of office, followed by musical honors.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Ladies and gentlemen, please be seated. तो जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे और इससे पहले 8 साल वो बराक ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्हें मालूम है काफी बेहतर तरीके से कि किस तरह से अमेरिका में सत्ता के इस शिखर को संचालित किया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनको वो बखूबी जानते हैं। बराक ओबामा के साथ काम करने के दौरान और अब ये जिम्मेदारी खुद उनके कंधों पर है, अमेरिका को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। और बहुत छोटा सा था इनका जो ओथ लिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग है सुशील ये देखना कि 4-5 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो स्लिप अप्स उन्होंने किया। बराक ओबामा खुद एक बार ओथ लेते वक्त उन्होंने स्लिप अप किया और उसके अगले दिन उनको चीफ जस्टिस के सामने फिर से जाके ओथ लेना पड़ा। बहुत पहले 1929 में हर्बर्ट हूवर होते थे, उन्होंने उनसे गलती भी थी और एक 13 साल की लड़की ने उनकी वर्डिंग को गलत पकड़ लिया था, फिर उनको दोबारा ओथ लेना पड़ा था। है बहुत छोटा और सिंपल सा लगता है, लेकिन वर्डिंग एग्जैक्ट और करेक्ट होनी चाहिए, वो यहाँ पे है। और जैसा आपने देखा बहुत छोटा, मुझे लगता है 20-30 सेकंड का था, लेकिन वो वर्डिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, इस बात का जरूर ख्याल रखा जाता है। जिस तरह अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे छोटा संविधान है, उसी तरह वहां पर शपथ भी बहुत छोटी होती है। और अब सबको इंतजार है कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले संबोधन में क्या कहते हैं, देश को क्या दिशा दिखाने की बात वो करने जा रहे हैं। Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now,
On this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this. Bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again
the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh. All of us. Let's begin to listen to one another again. Hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. Here we stand where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably,
within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand. अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा कि वो सबके राष्ट्रपति हैं, चाहे कोई उनसे सहमत हो या न हो, किसी ने उनके खिलाफ वोट दिया या उनके पक्ष में वोट दिया, वो सबके राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक नया अमेरिका बनाना है, एक इंक्लूसिव अमेरिका बनाना है जिसमें सबके हक की बात हो। और जब उन्होंने कमला हैरिस, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं, पहली महिला उपराष्ट्रपति, पहली एशियन अफ्रीकन भारतीय मूल की पहली महिला जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति बने, उनका जिक्र किया तो तालियों से गूंज उठा। Rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts. If we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand. There are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example.
We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all of those who we lost in this past year to the pandemic. Those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and co-workers. We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind, and for our country. Amen. Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up? All of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best, they did their duty, they healed a broken land. My fellow Americans, I close the day where I began, with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And will give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die on our watch but thrived. That America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America.
and may God protect our troops. Thank you, America. अमेरिका की जनता के नाम अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये पहला संदेश, जिसमें उन्होंने एक तरह से पूरे देश की एकता की बात की, देश के हर वर्ग की बात की, दुनिया में अमेरिका को वापस उसकी जगह दिलाने की बात की और खास तौर पर कमला हैरिस का जब जिक्र किया तो खूब तालियां बजी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, विमल मोहन मेरे सहयोगी हैं और उमाशंकर सिंह हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर और जाकिर हुसैन है पूर्व सीनियर फेलो ICWA। जाकिर साहब, आपसे मेरा सवाल है, जो बाइडेन की इस स्पीच में सबसे खास बात आपको क्या लगी? देखिए, सबसे खास बात जो है वो डोमेस्टिक यूनिटी, सामाजिक सद्भावना और सहिष्णुता पे उन्होंने जोर दिया है और ये कहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहते। उन्होंने थोड़ा बहुत जो है जॉब पे भी किया है, सिक्योरिटी पे भी किया है, लेकिन खास इम्फेसिस जो उन्होंने दिया है वो ये है कि अमेरिका एक यूनाइटेड अमेरिका होना चाहिए। जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं वो उस तरीके की घटनाएं फिर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात पे फोकस किया है कि अगर डोमेस्टिकली अमेरिका यूनाइटेड होगा तभी जो है फॉरेन फ्रंट पर वो यूनाइटेड वे में एक अच्छी पॉलिसी चला पाएगा। तो उन्होंने सबका विश्वास जीतने की कोशिश की है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लगभग कुछ उसी तरीके की बात उन्होंने की है। रेशियल जस्टिस की बात की है, इक्वलिटी की बात की है, डिग्निटी की बात की है। ये सारी चीजें जो है मिस हो रही थी शायद उनकी नजर में अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरान, तो उसको री-स्ट्रेंथन करने की बात की है, सबका विश्वास जीतने की बात की है और विकास की भी बात की है। और ये कहा है कि अमेरिका एक साथ ही जुट के चलेगा। फॉरेन इश्यूज पे उन्होंने बहुत ही कम टच किया है, जिसमें उन्होंने दो बातें सिर्फ कही हैं कि इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड सिक्योरिटी फॉर आवर चिल्ड्रन, अमेरिकन चिल्ड्रन एंड फॉर द वर्ल्ड। तो इससे इन्होंने फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पे कोई भी बातें नहीं कही है। शायद वो बाद में अपने जो उनके जो है प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि इमीडिएटली जो है लगभग 12 मुद्दों पर वो साइन करेंगे। उसमें इमिग्रेशन है, क्लाइमेट चेंज है और पैंडेमिक को लेकर है। ये शायद वो अभी जो है करना चाहते हैं, लेकिन एक बात ये समझ में आई है कि वो बहुत ही संभल कर और बहुत ही सुलझे अंदाज में अपनी स्पीच दिया है। जो उनकी स्पीच ये कहा जाता है उनकी 4 साल की पॉलिसीज का एक दर्पण होता है। तो उसमें हमें ये लगता है कि बहुत ही सुलझी शुरुआत करना चाहते हैं। समाज को, अमेरिका के हर तबके को, यूथ को, नौजवान को, ब्लैक एंड व्हाइट के रेशियल जो डिवीजन है उनको अपने साथ लेके चलने की बात की है। सारी स्पीच इसी पे फोकस है और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें किसी भी तरीके की तब्दीली होने की चांसेस नहीं जानी जाएगी। ये उनका पूरा ओवरऑल रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। जी, हमारे साथ उमा शंकर भी हैं। उमा, आपने भी जो बाइडेन की पूरी स्पीच सुनी। विदेश नीति के मामले पर बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं बोला, अमेरिका के अंदरूनी मसलों पर ही ज्यादा वो केंद्रित रहे। भारत के लिए आप किस तरह से देखते हैं जोसेफ बाइडेन के इस भाषण को, जो आने वाले दिनों की उनकी नीति को भी बताता है? देखिए सुशील, उन्होंने विदेश नीति पर एक लाइन बोला है और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के साथ अपने एंगेजमेंट को वो फिर से बढ़ाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अलायंसेस है उसको वो रिपेयर करेंगे। यानी उनके कहने का तात्पर्य यह था कि विगत जो कार्यकाल था ट्रंप के कार्यकाल में जिस तरह से एक छिन्न भिन्न तरीके से जो अलायंसेज हैं जो अमेरिका के दुनिया के कई देशों के साथ वो अमेरिका उसमें अलग थलग पड़ता चला गया, उसको फिर से वो रिपेयर करेंगे। आपको पता है कि किस तरह से बाइडेन ने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि वो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें दोबारा अमेरिका को लेकर आएंगे। इसके अलावा WHO से बाहर निकल गया था अमेरिका ट्रंप की जिद के चलते, वो वापस WHO ज्वाइन करेंगे। तो जहां जहां भी लगता है कि मरम्मत का काम है वो बाइडेन जो है वो आगे वो करेंगे। जहां तक बात है भारत के साथ, तो भारत की काफी निगाह जो है वो जब डेमोक्रेट की सरकार आती है तो कई सारे जो उम्मीदें जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं
और खासतौर पे जिस तरह से वीजा को लेकर ट्रंप ने कई सारी पाबंदियां लगाई, H1 वीजा को लेकर, या जो जिस तरह से पैंडेमिक सिचुएशन में वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो एक सख्ती जो है वो लगाते गए ट्रंप। अब उम्मीद ये की जा रही है कि बाइडेन के आने के बाद उस दिशा में कदम उठाया जाएगा और अंडू किया जाएगा जो कुछ ट्रंप लगा कर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले डोमेस्टिक जो अर्थव्यवस्था है, जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, उसको पटरी पे लाना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने एक 100 दिनों का जो एक प्रोग्राम है वो बनाया है। आपको याद होगा सुशील कि अभी 2 दिन पहले जब ट्रंप के इम्पीचमेंट की बात चल रही थी तो उस बीच में जो बाइडेन का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने इस बात पे खास तवज्जो दिया था कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया तो चले, आगे बढ़े, लेकिन जो सरकार का फोकस, नए एडमिनिस्ट्रेशन का जो फोकस है 100 दिनों का, उससे हिले ना, वो फोकस बना रहे। तो बड़ी चुनौती है बाइडेन के सामने, एक टूटे बिखरे हुए अमेरिका को फिर से जोड़ने की महाशक्ति है अमेरिका, और उसको वही प्राइड, वही जो गर्व है वो देना चाहते हैं। और ये सारी बातें उनके भाषण में परिलक्षित हुई है। भारत के संदर्भ में एक और बात है अहम कि जो ट्रेड डील है जिसको लगातार बार बार टाला जाता रहा। आपने देखा कि 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका, तब उम्मीद थी कि वहां पे ट्रेड डील हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जीएसपी से भारत को बाहर निकाल दिया ट्रंप ने। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि भारत को वो जो रियायतें पहले मिलती थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले वक्त में इस तरह के फैसले लेगा और दोबारा से भारत को सहूलियतें मिलेंगी। तो ट्रेड डील को लेकर जहां निगाह रहेगी, वहीं पे भारत को लेकर बहुत सारे ऐसी रियायतों का जिसको कि ट्रंप ने खत्म किया व्यापारिक तौर पे, उसको लेकर भारत की निगाह रहेगी। लेकिन अब जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो बाइडेन को बधाई भी दी है, तो एक सवाल बार बार लगातार उठता रहा है कि जिस तरह की एक पर्सनल केमिस्ट्री रही है ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, तो उसको अब नए सिरे से एक डिप्लोमेटिक अप्रोच के जरिए अब एक नया एक संबंध बनाने की जरूरत है। और उस दिशा में जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। जी उमा, और हम इस मसले पर करेंगे अभी और बात। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो अमेरिका में नए प्रशासन ने कामकाज संभाल लिया है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के वो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। 78 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति का ये जो ताज है वो पहना है। और उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी हैं, जो अमेरिका की पहली महिला हैं इस पद तक पहुंचने वाली। इसके साथ ही पहली अफ्रीकी एशियन महिला भी वो हैं। और आज जो भाषण दिया जो बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण के बाद, उसमें उन्होंने अमेरिका की एकता की बात की, अमेरिका में सबके लिए बराबरी की बात की, सबके लिए मौकों की बात की, और अमेरिका को उदार बनाने की बात की, वापस अमेरिका को उस जगह पहुंचाने की बात की, उस ऊंचाई तक पहुंचाने की बात की जहां वो पहले था। और निश्चित ही जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर है उसका वो जिक्र प्रकारांतर से कर रहे थे। हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह हैं, विमल मोहन मेरे सहयोगी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान हैं जाकिर हुसैन, पूर्व सीनियर फेलो ICWA। उमा, आपने सब सुना, ये भी बताया भारत के लिहाज से क्या बात कही। अब जो बड़े बड़े फैसले होने हैं, पहले दिन बताया जा रहा है कि 15 बड़े फैसले हो सकते हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, जिनमें कि सबसे पहले पेरिस समझौते में दोबारा से वापस लौटने की बात है, मुस्लिम ट्रैवल बैन जो है उसे हटाने की बात है, मैक्सिको की जो दीवार है मेक्सिको के साथ अमेरिका बन रही उसका काम रोकने की बात है। तो क्या क्या और अहम फैसले हैं? जी देखिए, आपने जो अहम फैसले उनमें से कुछ गिनाया, इसके अलावा जो है वो एक कोविड को लेके यूनिफाइड रिस्पांस की जो बात है वो आज फैसला लिया जाना है। और जो ट्रंप ने एक 1776 एक कॉमिशन जो एक वो किया था, अग्रीमेंट किया था, उसको भी खत्म करने की बात है। तो बहुत सारे ऐसे फैसले जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए थे उनको अंडू करने से संबंधित फैसला भी आज लिया जाना है। और क्योंकि कोविड जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे अमेरिका के सामने अब भी खड़ा है, तो 1.9 बिलियन डॉलर का जो एक
एक पैकेज है उसको, हालांकि उसको सेनेट और हाउस और सेनेट से उनकी मंजूरी लेनी होगी, लेकिन बड़े ऐसे फैसले आज जो बाइडेन की तरफ से लिए जाने हैं जो एक पहली शुरुआत होगी, खासतौर पे जो 100 दिनों का एक एजेंडा बनाया है जो बाइडेन ने, तो वापस पटरी पे अमेरिका को लाने की कोशिश है। सबसे पहले तो आर्थिक तौर पे, और उसके साथ साथ जो दुनिया के देशों से जो रिश्ते जिस तरह से खराब हुए थे, जैसा कि डेमोक्रेट्स का मानना है, तो उस दिशा में कदम को आगे बढ़ाना है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है, शुरुआत तो आज होगी लेकिन इन सब चीजों को पटरी पे आने में वक्त लगेगा। अभी अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं उस बीच में चाइना से एक खबर आ रही है कि चाइना ने माइक पॉम्पियो समेत 28 अमेरिकन को पे ट्रैवल बैन लगा दिया है। वो या उनके परिवार के लोग जो हैं वो चीन, मकाओ और जो हांगकांग है वहां नहीं जा पाएंगे, और जिस तरह के वहां अगर उनके कोई बिजनेस एक्टिविटी है तो उसको भी फ्रीज कर दिया जाएगा। तो जो ट्रंप ने जिस तरह से आपने देखा कि एक कड़ा रुख अख्तियार किया था चीन के प्रति, कोरोना वायरस को हमेशा वो चाइना वायरस करके बुलाते रहे। चीन का ये कहना है कि बहुत सारे अंदरूनी मामलों में, खासतौर पे उइगर मुस्लिम के मामले में बहुत ज्यादा दखल जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अंदरूनी मामलों में दिया था। लेकिन बड़ी बात यह भी है, चीन को यह भी देखना पड़ेगा कि जो बाइडेन जो है वो भी मानवाधिकार के बहुत बड़े पुरोधा हैं, और उनका इस बात पे जोर रहेगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है तो वहां पे एक सख्ती की बात की जाए। इसी तरह से तिब्बत का मामला जो है उसके लिए एक अलग से नियुक्ति की बात जो है वो जो बाइडेन की तरफ से की गई, एक अलग प्रशासन में एक अलग से नियुक्ति की जाएगी उसको लेकर। तो जाहिर सी बात है कि इन बातों से चीन को तकलीफ तो होगी, लेकिन आने वाले समय में चीन अमेरिका के रिश्ते किस तरह से पटरी पे आते हैं, किस तरह से एक नया सामंजस्य देखने को मिलता है, और किस तरह से भारत के साथ जो कुछ भी जैसा कि मैंने जिक्र किया, ट्रेड की बात हो या वीजा की बात हो, तो क्या कुछ कदम आगे आने वाले समय में उठता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बाइडेन ने अपनी तरफ से इस बात का संकल्प दिखाया है कि वो अमेरिका के रिश्तों को दुरुस्त करेंगे दुनिया के अलग अलग देशों के साथ। जी बिल्कुल। और जाकिर साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि उमा ने बताया कि फॉरेन रिलेशंस को वो फिर से ठीक करना चाहते हैं, या डेमोक्रेसी पे काफी देर तक अपने पूरे भाषण में आधे समय तक उन्होंने करीब डेमोक्रेसी, इंटरनल यूनिटी को जो बनाए रखने की बात है, बगैर ट्रंप का जिक्र किए हुए कि पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। वो सबके राष्ट्रपति हैं, 81 मिलियन ने उन्हें वोट किया, जो इन्होंने वोट नहीं किया वो उन सबको इंक्लूसिवनेस की बातचीत कर रहे थे। उमा ने जो ह्यूमन राइट्स पॉलिसी है उसका भी जिक्र किया। खासकर मैं भारतीय के लिहाज से पूछना चाहूंगा, जैसे 20 या 25 लोग हैं उनके जो अहम जो टीम बनाई है उसमें ये काफी टीम मैन माने जाते हैं, तो उसमें जो भारतीयों के लिए जो बातें होंगी, कमला हैरिस का होना, या जैसे विवेक मूर्ति हैं जो डॉक्टर, जो पैंडेमिक को लेकर जो पॉलिसी बनेगी वहां विवेक मूर्ति का रोल होगा, ऐसे कई सारे हैं जो कि जिनमें भारतीयों को अहम रोल मिला है। आपको क्या लगता है, अगर भारतीय जो वहां के नागरिक है या यहां पे जो हैं उनके लिहाज से देखें, क्या अहम बातें हैं बाइडेन ने जो स्पीच दी है उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि हिंदुस्तानी कहीं भी रहे लेकिन उसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़केगा और धड़कता रहेगा। जिस तरीके से भारतीयों ने हमारे न्यूक्लियर एग्रीमेंट में एक अच्छा रोल अदा किया था, उसी तरीके से हम फिर सोचते हैं कि ऐसा वो रोल अदा करेंगे। हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं जिसको लेकर हम चाहेंगे कि ये जो 20 से 25 जो भारतीय हैं और उसमें 17 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, अपॉइंट किए गए हैं या नॉमिनेट किए गए हैं, तो उसमें जैसे ट्रेड का इशू है, ट्रंप ने कुछ ऐसी चीजें की थी जिससे हमको जो है स्पेशल कैटेगरी से निकाल दिया, जो कि हम शुरू से ही 1970 से ही उसके कर रहे थे। 5-6 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड था जिसपे टैरिफ नहीं लगती थी, उसको निकालना हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं होती। कुछ इशूज जो है जैसे कि डेटा नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को लेकर था, डेटा हेजिंग की पॉलिसी थी, और ट्रेड के जो एफटीए में जो रुकावटें आ रही थी उसको लेकर था। अमेरिका और ट्रंप जो है वो चाहते थे कि भारत जो है अपने बाजार को खोल दे हमारे प्रोडक्ट को, और उसके बदले में हमें जो है उतनी पहुंच ना दे। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन दूसरा मुद्दा जो है वो अपना स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी को लेकर, आज चाइना जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, क्या बाइडेन जो है हमारे साथ अपने वो रूल इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे वो कहते हैं कि देश में विश्व में शांति हो, बराबरी हो और एकजुटता हो और यूनिटी हो? क्या वो उस तरीके से हमारे साथ खुल के आएंगे? चाइना के खिलाफ नहीं बल्कि एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे वर्ल्ड में, ये भी एक देखने वाली बात है।
और हमारा जो मिलिट्री का अलायंस जो चल रहा था और इंडो पैसिफिक की जो बात चल रही थी, इसमें ट्रम्प कितना खुल के आएंगे। अपने भाषण में तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ये कहा है कि हम इंगेजमेंट करेंगे। लेकिन इंगेजमेंट पर भी उन्होंने एक बहुत ही सुलझी हुई बात ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे वैल्यूज रहेंगे। वैल्यूज उनके जो है वो हम आप सब जानते हैं कि वो ह्यूमन राइट की बात करेंगे, वो जो है किसी नेशन को एक्सेस नहीं करने देंगे, या अमेरिका की पोजीशन को नहीं डाउन होने देंगे, या अमेरिका को कहीं भी ऐसे जो है प्रॉब्लम में, ऐसी किसी समस्या में उलझाएंगे नहीं। क्योंकि अगर वो ये सब करते हैं तो शायद वो अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को, ये सब जो है वो नहीं कर पाएंगे और ट्रम्पिज्म फिर से आएगा। जैसा कि ट्रम्प जाते वक्त कहा कि हम फिर लौट के आएंगे। ये बहुत बड़ा संकेत है, ये बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस होगा बाइडेन के ऊपर। लेकिन हम चाहते हैं कि जो 3 मिलियन 30 लाख इंडियन लगभग जो वहां पर है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव 20 इंडियंस आए हैं, इनका रोल अच्छा होगा और हमारा रिलेशन जो है बहुत हम बहुत इंथुसियास्टिक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी बार्गेनिंग करने की पोजीशन में हो सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक भी नहीं होना है यूएस को लेकर। हम अपने जो है मान्यताओं को भी सामने रखेंगे। यूएस जहां हमें कॉपरेट करना चाहेगा वहां हम ओपन हाथ से रहेंगे। ये सारी चीजें हैं, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में बाइडेन किस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि बाइडेन पूरी तरीके से फ्री नहीं है। उनको फ्री होने के लिए बहुत ही धीमी रफ्तार पे चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने चाइना का बिल्कुल नाम नहीं लिया है। अब लगातार हम लोग रोज जो बाइडेन की बात करेंगे, उनके आने वाले दिनों में जो फैसले हैं उन्हें देखा जाएगा कि किस तरह से वो पिछली सरकार से उलट फैसले करते हैं, काफी बदलाव करते हैं और लगातार उनकी बात होगी। और ट्रंप जो अब चले गए हैं उनकी बात शायद उतनी ना हो, लेकिन अंत में जाते आते बात करना जरूरी है। गार्डियन अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप लीव्स व्हाइट हाउस आफ्टर 4 years ऑफ लाइज एंड केओस। उमा 4 साल के झूठ और एक तरह के केओस के बाद डोनाल्ड ट्रंप निकले। कैसे आप याद करेंगे? आप विदेश नीति को कवर करते हैं इतने करीबी से, भारत अमेरिका रिश्ते इतने सालों से देख रहे हैं। 4 साल का जो दौर था ट्रंप का, उसे कैसे आप सम अप करेंगे? जी देखिए, जो अभी ट्रंप ने जाते जाते कहा है कि किसी रूप में लौट के आएंगे, अभी सबसे बड़ी तलवार उनके ऊपर जो लटकी हुई है वो इम्पीचमेंट की है, जो सेनेट में उसकी सुनवाई कल से ही शुरू हुई है। और आज क्योंकि इनॉग्रेशन था, इसलिए अब कल अमेरिका के समय के हिसाब से दोपहर को 2 बजे फिर सेनेट की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो देखना यह है कि जो लौट के आने की वो बात कर रहे हैं, क्या डेमोक्रेट्स इस मामले में सफल हो पाते हैं कि उनको सीनेट से इम्पीच करके, उनको कन्विक्ट करके, उनका ट्रायल करके, उनको कन्विक्ट करके उनका आगे की प्रेसिडेंसी का जो कोई भी उम्मीदवारी है उसको खत्म कर दें। तो ये कोशिश जरूर होगी ट्रंप को लेकर डेमोक्रेट्स की। 100 सदस्यों की सीनेट है, जिसमें कि 50 डेमोक्रेट्स के पास हैं और 50 रिपब्लिकन्स के पास। ऐसे में 17 जो सीनेटर्स हैं उनकी जरूरत होगी ट्रंप को कन्विक्ट करने के लिए। और जिस तरह से कल मिच मैकोनेल ने इस बात को कहा कि वो रिपब्लिकन्स हैं, वो लीडर हैं वहां पे सेनेट में, उन्होंने ये कहा कि दोषी हैं राष्ट्रपति भीड़ को उकसाने के जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ। तो इन सब बातों को देखते हुए जरूर ये कहा जा सकता है कि ट्रंप आगे से उम्मीदवारी न अपनी 2024 के लिए ले पाए, इसकी कोशिश पूरी होगी अमेरिका में। जो भी वहां पे एक ऐसा प्रबुद्ध तबका है जो मारकाट में या किसी तरह के बंटवारे में भरोसा नहीं करता। और जहां तक सम अप करने की बात है, तो पिछले 4 साल में बहुत तरह का डिवीजन देखा अमेरिका ने, जो व्हाइट सुपरमेसी की जो बात है, और जिस तरह से आपने देखा कि ब्लैक लाइफ मैटर करके जो एक वहां पे कैंपेन चला, जिस तरह से पुलिस अत्याचार में वहां पे ब्लैक की जो है 2-3 हत्याएं हो गई उसमें। तो अब अमेरिका को वापस पटरी पे लाना और एक आपसी भाईचारा की जो बात लगातार जो बाइडेन ने की है, वो बड़ी चुनौती है। और ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि पिछले 4 सालों में अमेरिकी समाज में बहुत तरह के बंटवारे देखने को मिले हैं। सुशील, उमा, एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे उन्होंने ओपनिंग रिमार्क किया कि दिस इज अमेरिकाज डे, दिस इज डेमोक्रेसीज डे। उन्होंने ये भी कहा कि डोंट टेल मी थिंग्स कांट चेंज। तो कई सारे होप्स भी उन्होंने बंधाए। क्या आपको लगता है उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बाहर का है या इंटरनल चैलेंज है? उनके सामने जो लिगेसी उन्हें मिली है, जो विरासत में जो कुछ मिला है, सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए या जो बाइडेन की टीम के लिए क्या नजर आता है?
जी देखिए, जो आपने कहा वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि 108 साल पहले जब वहां अमेरिकी जो महिलाएं जो हैं वो अपने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ रही थी, तो बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे। और आज जब कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि बदलाव नहीं हो सकता। जहां तक चुनौती की बात है तो दोनों तरह की चुनौतियां हैं। डोमेस्टिक उनके सामने चुनौतियां हैं, जिस तरह से एक विभाजन की कगार पे अमेरिकी समाज खड़ा हो गया है और जिस तरह से एक वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट का जो एक सिलसिला है वो शुरू हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने ये भी चुनौती है कि अपने पुराने टाई जो हैं और अपने जो पुरानी रणनीति पुरानी साझेदारियां हैं उसको दोबारा से पटरी पर लेकर आए, क्योंकि आर्थिक अवस्था ठीक करने के लिए जरूरी है कि अमेरिका दुनिया के अलग अलग साझेदार देशों के साथ फिर से वो रिश्ता बहाल करे। जो आप कह सकते हैं कि इंपल्सिव होकर ट्रंप ने कई सारे ऐसे समझौतों से वो बाहर निकले, कई सारे देशों के साथ उन्होंने इस तरह की एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मनी ली, जिससे कि अमेरिका को और ज्यादा एक अपने आप में उनको सिंक्रोनाइज कर गया। तो अब देखना है कि जो बाइडेन जो है उन चुनौतियों को, चाहे वो डोमेस्टिक चुनौती हो चाहे वो विदेश नीति से संबंधित चुनौती हो, किस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और कैसे जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो रिपेयर करेंगे अपने अलायंसेस को, उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। विमल, ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस वक्त वहां मौजूद हैं अपने परिवार के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पति वहां मौजूद हैं। वापस लौटने से पहले की ये तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं। तो अमेरिका में एक नया प्रशासन अब आ गया है। ये देखना है कि किस तरह से वो अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर नए बदलाव लाता है, दुनिया के साथ और ज्यादा दोस्ती मित्रता से पेश आता है। और अमेरिका के अंदर जिस तरह का विभाजन जनता के बीच बीते कुछ 4 साल के अरसे में हुआ, उसको कैसे वो पाटता है, ये एक बहुत बड़ी चीज देखने को होगी। और लेकिन सबको जो बाइडेन से बड़ी उम्मीदें हैं कि अमेरिका को एक बार फिर एक उदार देश बनाएंगे, एक बेहतर देश बनाएंगे दुनिया के तमाम देशों के साथ। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के दौर में खिंचाव एक तरह से आ गया था, वो उसे दूर करेंगे। तो ये खबर हमारी इस पर बातचीत जारी रहेगी। वक्त है एक ब्रेक का। और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए, उन्होंने शपथ ले ली है। इससे पहले उपराष्ट्रपति कमला देवी हैरिस ने शपथ ली और इस वक्त हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। उमा, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। चैलेंजेस की बात हम कर रहे थे राष्ट्रपति के सामने। इस दौरान जो भारत के रिश्ते हैं, खासकर जो ट्रंप के समय में एक भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंधों की वजह से चाहे जो भी प्रगाढ़ता रही हो, इनके आने के बाद आपको क्या लगता है उस दिशा में या बदलाव आएगा या प्रगाढ़ता रहेगी? और एक और जो है ह्यूमन राइट्स को लेकर जो डेमोक्रेट्स का या जो बाइडेन की टीम का जो कंसर्न है, उसको लेकर आपको क्या लगता है, भारतीय रुख क्या और कैसा रहेगा? ये देखिए, एक बड़ी शंका ये उठाई जाती रही है कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को लेकर जो बाइडेन का एक अप्रोच रहा है, तो वैसे में क्योंकि पाकिस्तान लगातार और बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कश्मीर के मामलों को उठाकर एक गलत तरीके से ब्लेम करने की कोशिश करता रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर इंडिया को, तो इस दिशा में एक कंसर्न इंडिया की तरफ से रहा है। लेकिन जब भी कोई एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आता है अमेरिका में, तो उसकी कोशिश होती है कि व्यवहारिक रुख अख्तियार करने की। और क्योंकि भारत बार बार लगातार ये कहता रहा है कि जो भी कश्मीर का मामला है वो भारत का अंदरूनी मामला है और उसमें किसी दूसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है, तो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ये बातें जो हैं वो लगातार कम्युनिकेट की जाती रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के बाद अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई बयान आएगा जिसको लेकर ये कहा जाए कि जहां पाकिस्तान को कोई तवज्जो मिलता नजर आए। लेकिन एक बहुत अहम बात ये देखने वाली होगी कि जिस तरह से अब तक अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आए हैं वो एक ऐसी पॉलिसी लेकर चलते हैं जिसमें बैलेंस का जो एक बैलेंस बनाने की जो कोशिश होती है पाकिस्तान और भारत के बीच, क्या उसमें जो बाइडेन एक
एक कोई निर्णायक तब्दीली लेकर आते हैं और खासतौर पे टेररिज्म के मामले पे पाकिस्तान को क्या वो जड़ से वहां से खत्म करने के लिए किस तरह से बाध्य करते हैं, तो ये एक देखने वाली बात होगी। और दूसरा, अफगानिस्तान को लेकर जो उनकी पॉलिसी है, खासतौर पे जैसे ट्रुप्स को वापस ले जाने की जो शुरुआत हुई थी पिछले कार्यकाल में, जब ट्रंप के कार्यकाल में, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां से जब ट्रूप्स निकलते हैं तो वो भारतीय हितों पे वहां पे नुकसान पहुंचता है। ये बात भारत बार बार लगातार कहता रहा है। तो जो पीस प्रोसेस चल रहा है अफगानिस्तान को में, उसको लेकर किस तरह का रुख रहता है जो बाइडेन का, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में यहाँ पे इसका एक अलग तवज्जो होगा और देखना होगा कि इन सब बातों में भारत को क्या कुछ मिलता है और कुछ ऐसा जिसको लेकर कि लगातार डेमोक्रेट्स के तरफ भारत की उम्मीद लगातार बनी रहती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब ये ह्यूस्टन में ये बड़ी रैली हो रही थी वहां पे, उस हाउडी मोदी, उसमें जब ट्रंप को लेकर जो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक नारे को दोहराया गया था, तो उसको लेकर बड़े सवालात उठे थे। लेकिन जो भारत के मूल के लोग वहां पे अमेरिका में रहते हैं, उनका लगातार ये मानना रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, उनको एक बोलने की जो ताकत है वो दी, एक पहचान दी, नई पहचान दी। लेकिन जहां तक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो वो ज्यादातर कंफर्टेबल जो है वो डेमोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे रहते हैं और उनको लगता है कि उसमें उनकी हितों की ज्यादा रक्षा होती है। तो ये सारी बातें हैं जिसको देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से उन पॉलिसी को अंडू करते हैं। जाते जाते एक सवाल, यही भारत के लिए नया अमेरिका, बाइडेन के दौर का अमेरिका कैसा रहेगा संक्षेप? बहुत हद तक चीजें जो है कंट्रोल में नहीं कहेंगे, बल्कि शांतिपूर्वक चीजें तरीके से चीजें होंगी। लेकिन ऐसा हम नहीं मान रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव कम होगा, बल्कि दबाव से ही जो है अमेरिका अपनी पोजीशन को इंप्रूव करेगा। एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जान ले, अमेरिका जो है पिछले अमेरिका जैसा नहीं है। वो आर्थिक रूप से इतना ज्यादा दबाव में है, $700 बिलियन का उसका डिफिसिट है। उसका डॉलर जो है चाइना और रशिया मिलकर बिल्कुल डॉलर की वैल्यू खत्म करने पे लगे। अगर डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपनी पोजीशन लूज करता है तो अमेरिका को कौन बचाएगा? अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जाकिर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी इतना ही समय था। नया अमेरिका भारत की तरफ किस तरह से हाथ बढ़ाएगा, भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी जटिल हैं। दुनिया भर में तमाम देशों के साथ भारत का जो गणित है उसमें अमेरिका किस तरह से नई भूमिका निभाएगा, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर हमारा ये खास कार्यक्रम अभी बस इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का।